इट ऑल। मैं इसका 4 पैक यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है, मतलब यूज़ करके कहीं ना कहीं फेंका हुआ रहता था, ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। सो इफ़ आई शो यू द टोटल दैट आई हैव बॉट इज़ लाइक 4 of them, 1 2 and 3 4, and I loved it so much that I bought 4 of them and you. Hi, welcome to my channel. As always, this video is going to be in Hindi and English both, one after another. Also, don't forget to subscribe to my channel because that encourages me to do something more unique for my audience. आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। एज ऑलवेज हमेशा की तरह ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि वो मुझे इंकरेज करता है टू डू मोर समथिंग यूनिक। मेरे ऑडियंस जब खुश होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपरपिगमेंटेशन and I know it's kind of a lot problem, like you do so many DIYs and you use so many products to get rid of just of hyperpigmentation, but that doesn't goes away for some reason, and I know why it won't goes away. Maybe sometimes you're using some wrong product, or sometimes you're just treating your hyperpigmentation wrong. Okay, people say hyperpigmentation can go away with one DIY that you do, but actually the truth is everyone has different skin and there is different solution for everyone's skin problem. मैं ये बोल रही हूँ कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपरपिगमेंटेशन की। ना हाइपरपिगमेंटेशन जो है वो मोस्टली आ ही जाती है, टैन की वजह से आती है, धूप की वजह से, किसी न किसी वजह से आती है। हाइपरपिगमेंटेशन हर स्किन पे जब होती है तो हर स्किन डिफरेंट होती है। किसी की स्किन को ट्रीट करने के लिए कोई और चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, किसी और की स्किन को ट्रीट करने के लिए कुछ और यूज़ करना पड़ता है। फॉर दैट रीज़न हम एक DIY हर सब पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक चीज़ सब पे सूट नहीं कर सकता है। मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाई हूँ जो सब पे सूट करता है और मैं सब पे टेस्ट की हुई हूँ। फॉर दैट रीज़न आई एम हियर to introduce you with the product and I have used it personally 4 packs of them। जिस प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसके मैं 4 पैक यूज़ कर चुकी हूँ और वो 4 के 4 मेरे पास हैं अभी भी। I'm gonna show you in the video, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बातें बहुत हो गई, अब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ गया। So we have talked a lot, now let me introduce you to the product. So today we are going to talk about Skin Aqua Moisturizing Serum that has SPF of 27, unique hydrating and regenerating formula. Therapeutic effect, moisturizing, nourishing and lightening, restores damaged skin, hypoallergic and non-comedogenic. We are going to talk about the Skin Aqua Moisturizing Serum. Yes, it is a serum but it comes in more like a cream based product. This is by the company Rotho Mentolitum, it says up here. I like it because not just it has a lot of good ingredients but also the dewy feeling and the complete lightening finish, the glittery finish that it gives, the shiny look that it provides after you use of this is kind of incredible to imagine. Most of the time it takes few months after using the product to get that glassy skin, or maybe I'm gonna say to restore your damaged skin, but in this case actually using 1 pack of this I can say that this was kind of one of the serum that I really wanted in my skincare routine, and I used the 4 pack because I was getting in love with the serum and I completed the 4 pack. Second thing that he mentioned that it has SPF 27, that didn't disturb me from using the moisturizer, so I really love this product. आज हम बात करने वाले हैं स्किन आपका मॉइस्चराइजिंग सीरम, यूनिक हाइड्रेटिंग एंड रिजुविनेटिंग फार्मूला जिसमें है SPF 27 PA++, थेरेपेटिक इफेक्ट, मॉइस्चराइजिंग है, नर्सिंग है और लाइटनिंग है, रिस्टोर डैमेज स्किन, मतलब डैमेज स्किन को रिस्टोर करता है, सही करने में हेल्प करता है, हाइपोअलर्जिक, नॉन कमोडोजेनिक का मतलब होता है अगर आपको एक्ने है या नहीं भी है तो फिर भी ये आपके पोर्स में नहीं जाएगा और आपके पोर्स को बड़ा नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा आपके। क्योंकि इस प्रोडक्ट को एक्चुअली मैं 4 पैक ख़त्म कर चुकी हूँ, लाइक 4th पैक, एंड मुझे इसलिए अच्छा लगा ये प्रोडक्ट क्योंकि इसमें तो एक तो इंग्रेडिएंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसकी इंग्रेडिएंट कंप्लीट बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकंड, जब आप ये लगाएंगे तो उसके एक एप्लीकेशन के बाद ही आपकी स्किन अगर टेक्सचर्ड भी है, कहने का मतलब अगर गड्ढे भी आपके स्किन पे या फिर पिंपल्स हैं या फिर दाग हैं तो वो जो लुक है ना, जो इसको एक एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जो शाइनी लुक आता है ना, यू कैन नॉट इमेजिन। वो जो शाइनी लुक जब ये देता है तो आपकी स्किन इतनी बेहतर फील करती है और सेकंड ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देती और वो लुक जो आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आता है वो आपको एक एप्लीकेशन में इससे मिलता है। फॉर दैट रीज़न मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और सबसे अच्छी बात है कि इसमें SPF 27 भी थी जो कि मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब आप एक बार सवाल आएगा आपके मन में कि जब इसमें SPF है सीरम में तो सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र लगाने का क्या फ़ायदा अगर SPF पहले है। मैं उसको भी टेस्ट आउट की कि क्या ये काम करेगा नहीं करेगा, बट एक्चुअली मैं सबके साथ इसको टेस्ट की, सबके साथ ये जा रहा था
और मॉइस्चराइज़र भी इसके साथ मैं यूज़ कर रही थी, जिससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी तो ऑल डे लॉन्ग, मतलब अगर स्टोव के सामने भी कुकिंग करनी पड़े तो भी मेरी स्किन ड्राई नहीं होती थी और सनस्क्रीन भी रहता था, एंड मेरी स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती थी कि फॉर दैट रीज़न कहीं ना कहीं मुझे एक्ने कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। अगर मैं पैकेज के इंग्रेडिएंट्स पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ है अमीनो एसिड, hyaluronic acid, collagen, vitamin B3, vitamin C and SPF 27 PA++. Talking about the ingredients, it says it has amino acid, hyaluronic acid, collagen, vitamin B3, vitamin C, SPF 27 PA++. So now let me introduce you to the entire ingredient of this product, which are water and then Exethyl and then anthranol, niacinamide, cyclopentylcezone, butyl and then sodium hydroxide, collagen, titanium hydroxide, dimethicone, zeaxanthin gum, and then mica, and then also it has disodium EDTA and a lot many more. तो अगर मैं इसकी इंटायर इंग्रेडिएंट की बात करूँ जो मैंने वेबसाइट से निकाली है, तो इसमें मिला हुआ है वाटर, इथेनॉल, नायासिनामाइड जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एंड देन इट हैज़ सोडियम एस्कॉर्बियल फॉस्फेट और फिर डाइमेंथिकोन है, एंड देन इसमें बहुत सारे अदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जैसे MICA मिका, एंड देन इट हैज़ disodium EDTA and many more. I introduced you to the ingredients, the entire ingredients. Well, on the package it doesn't mention the entire ingredient, it just mentions the importance, and I am gonna say, I guess, key ingredients right on the package, that's all. But I went to the website to check whether everything is good or not. I do have one suggestion to give about the ingredient, one of the ingredient out of all these, and I'm gonna give it at the last of the video, so be with me. तो आपने इंग्रेडिएंट पढ़ लिए और आपको इंग्रेडिएंट पता ही होगा कि इसमें क्या क्या, क्योंकि मैं स्क्रीन पे भी दिखा चुकी। सेकंड थिंग कि इस पैकेज पे जो है वो बस इतना ही इंग्रेडिएंट मेंशन हुआ है, इस पे पूरी इंग्रेडिएंट नहीं दी गई है, तो आई थिंक इस पे बस की इंग्रेडिएंट है, बट फिर भी आई मीन किसी को सजेस्ट करने से पहले खुद यूज़ कर लेना चाहिए, और इंग्रेडिएंट में क्या है, किसी को एलर्जी हो सकती नहीं हो सकती, तो इसके लिए इंटायर इंग्रेडिएंट को जो मैं वो पढ़ ली, और उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मुझे कुछ आपको बताना भी है और जो कि मैं लास्ट में बताऊँगी वीडियो में, तो बने रहिए। So now let's talk about the application. Application wise, it was nothing to like worry about how to apply this, what to with apply this. It was just like a normal serum, like how you would use a vitamin C serum in the same way. What you just have to do is take a little bit of this. When you are applying a cream based serum, you have to take a very little bit. What I used to do, I'm gonna show you up here. I was just applying this much amount to my entire face, and the glow it used to give me was kind of amazing. अगर मैं एप्लीकेशन वाइज बात करूँ तो एप्लीकेशन वाइज आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट, बस आपको नॉर्मली अप्लाई करना है जैसे आप कोई भी सीरम लगाएंगे। और ज़्यादा टाइम यूजली मैं देखती हूँ अपने ऑडियंस को वो लिक्विड बेस सीरम यूज़ करते हैं, बट क्योंकि ये क्रीम बेस है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इतना ही इसको लगाइए, और मैं भी इसको इतना ही यूज़ करती थी, एक पिंच आई थिंक पी साइज़ अमाउंट वो काफ़ी था मेरे लिए। जैसे हम रेटिनॉल यूज़ करते हो तो रेटिनॉल भी बस एक पी साइज़ अमाउंट यूज़ होता है, तो वैसे ही जब आप ये इसको यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में तो बस आपको पी साइज़ अमाउंट ही यूज़ करना है। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप इसको लगाइए, या फिर इससे पहले टोनर लगाइए, उसके बाद ये लगाइए, और उसके बाद आप एसेंस लगाइए या मॉइस्चराइज़र लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, दैट्स ऑल। और अगर रात में आप ये लगाना चाहते हैं तो फेस वॉश कीजिए, और फिर उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, या इनडायरेक्ट मैं बात करूँ तो टोनर लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र फॉलो अप कर सकते हैं। मैं इतना बात ज़रूर बोलूँगी, मॉइस्चराइज़र बिना लगाए भी ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग के लिए काम करते हैं। Talking about the application, I was just saying that to apply this, just do a face wash and then apply this after a toner, or you can directly apply it on your skin. It will do no harm to your skin. And remembering that you have to keep your skin hydrating, don't forget to follow up with moisturizer and sunscreen. Well, I'm not gonna say mainly to the moisturizer. You can use a moisturizer, it's all up to you. It will be very beneficial. But if you don't want to use a moisturizer after this, that is completely fine as well. You don't have to, and that is because using this was enough for my skin to be hydrated, and I didn't felt any dryness after using this in the entire face, because it says moisturizing serum, so it does have hyaluronic acid which helped me to stay hydrated all day long. So now we're gonna talk about the texture. I have it up here and I'm gonna show you the texture of this. The texture is somewhat
like this. You can literally see the difference, like how this shines and this does not. Like this, I haven't applied this on this one and I have applied it on this one. So how this shines and how this doesn't. And this feels so much hydrated. Like this side feels so much hydrated of my skin and this side doesn't. It feels more of, I've applied the lotion so it's kind of like dry by now, but this one feels so shiny. And talking about the smell of this, I'm just gonna prove you. Actually, I have like a lot. I have like 4 up here, so it's kind of okay. I'm gonna say I love the smell of this. It is so much calming. Like it doesn't have very strong smell that would give you migraine. So if you are the person who have headaches and all, I'm gonna say that this is safe for you. Okay, this is safe for you. I personally get headaches from a lot of strong smells, and this one doesn't have it. It smells more like a flower, like we can say like scented flower, and it has a very unique texture, and I love it because one application shows you the difference, the shiny look. The thing I love most is that while you are applying it, you are not just hydrating your skin, giving it the moisture, you are repairing your damaged skin, also using an SPF at the same time. I know 27 SPF is not enough, but you are at least using a 25/7, right? And then also this is giving you the shiny look. It is working, providing you the shiny look at the same time. And by shiny look I don't mean like oily ones, but the ones that looks like glassy skin. तो अगर टेक्सचर की बात करो तो टेक्सचर वाइज मैं आपको अभी बताती हूँ कैसा है. Let me just pour it out. Okay, here. एंड एक्चुअली मैं इसे इस हैंड पे जब इंग्लिश में बना रही थी तो उस वक्त मैं इस हैंड पे की थी टेस्ट, अब इस हैंड की टाइम. मैं नहीं चाहती कि मिक्स हो जाए, तो इसके लिए लाइव आई एम गोना शो यू. आई थिंक मिल गया. मुझे डिफरेंस यहीं से पता चल जाता है, तो आई डोंट नो अगर आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं, बट आई कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एट दिस टाइम. सो हियर इट इज़. एप्लीकेशन की बात की ये है, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम लग रही है, शाइनी लग रही है. वो क्योंकि मैं इसमें अप्लाई की थी वीडियो में, और अभी मैं इसमें अप्लाई की हूँ तो आप दिखाने के लिए. तो ये जो साइड है वो एक्चुअली शाइनी लग रही है इससे कई गुना ज़्यादा, और ज़्यादा हेल्दी भी लग रही है दिखने में. एक ही एप्लीकेशन के बाद आपकी वो ग्लोइंग स्किन वाली टेक्स्चर या फीलिंग आपको मिलती है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको चिपचिपी फीलिंग आएगी या ऐसा कुछ, बट इनफैक्ट मेरी हाथ तो बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही है. सो फॉर दैट रीज़न, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है, वन थिंग दैट आई लव अबाउट दिस व्हिच इज़ कि एक तो ये आपकी स्किन को डैमेज जो हुआ है उसे रिपेयर कर रहा है, साथ में नॉन कोमोडोजेनिक. थर्ड थिंग इज़ दैट कि इसमें अमीनो एसिड से वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. विटामिन सी भी है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, कोलेजन है एंटी एजिंग के लिए सबसे बेस्ट. के बाद ये जब आप अप्लाई करते हैं, हाइड्रेट भी कर रहा है, साथ में डैमेज स्किन को रिपेयर कर रहा है, ग्लोइंग टेक्सचर भी दे रहा है. कहने का मतलब है आपको कई बार प्रोडक्ट यूज़ करने पे रुकना पड़ता है, उसके रिजल्ट के लिए रुकना पड़ता है. और मैं खुद ऐसे प्रोडक्ट यूज़ की हुई जिसके रिजल्ट के लिए मुझे वेट करना पड़ा था, बट मुझे अच्छा ये लगता है कि ये अपने काम करने के साथ साथ आपको उस वक्त ग्लोइंग स्किन भी देता है. आपकी स्किन ग्लो लगने लगती है एप्लीकेशन के बाद, और वो अपना काम कर रहा है जैसे आप उसको अप्लाई किए, बट साथ में ग्लोइंग भी लग रहा है. सो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. और ये हाइड्रेटिंग भी, कहने का मतलब मॉइस्चराइजर ना भी लगाएं फिर भी ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, हाइड्रेटिंग लगता है. मॉइस्चराइजर लगाओ तो और भी ज़्यादा अच्छा, बट नहीं लगाए तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा. Now talking about the skin types, which skin type can use this, right? So if talking about the skin type, all skin type can use this. If you have acne, then also you can use it. I used it on acne prone skin, like I have acne prone skin. If you have dry skin, combo skin, this is going to help you a lot. It's for all skin type, mentions on the package as well. And I tested it on my mom who have normal skin, and I tested it on my friend and she has dry skin. So we all three did a test for you, and here's the result. It's for all skin type.
तो अगर आप स्किन टाइप की बात करें तो स्किन टाइप में मैं ये बोलूँगी कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। कहने का मतलब हर एक स्किन टाइप के लिए। अगर आपकी एक्ने है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी हाइपरपिगमेंटेशन प्रॉब्लम है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात ये है इस प्रोडक्ट की कि ये हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। कहने का मतलब है कि हाइपरपिगमेंटेशन है तो भी आपको बहुत हेल्प करता है, मुलाजमा है तो भी हेल्प करता है, माउथ एरिया के पास अगर आपको पिगमेंटेड स्किन आ गई तो भी बहुत हेल्प करता है, अगर एंटी एजिंग के लिए चाहिए तो भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें कोलेजन है। तो फॉर दैट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट हेल्प्स यू विद द कोलेजन, इट हेल्प्स यू फॉर द एंटी एजिंग, इट हेल्प्स यू विद द रिमूविंग हाइपरपिगमेंटेशन, हेल्प्स यू विद द डार्क स्पॉट्स, हेल्प्स यू विद द सन टैन। आई लव दिस बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू द ग्लोइंग स्किन। हर एक स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं इसको। Price wise this cost me actually 300, like 300 per much, like 300 for one of them and a good serum at the same time. I don't know if many people know about this product or not. अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस वाइज मुझे ये बस 300 में पड़ी जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे ये ट्रैवलिंग के वक्त मिला, इसके लिए मुझे ये बस 300 में मिला है। और इसके लिए नहीं क्योंकि मैं ट्रैवल करती, बट इसके लिए जब जहाँ मैं गई थी ट्रैवल करने वहाँ पे मुझे 300 में परचेज़ करना पड़ा। सो 300 मुझे ज़्यादा लगा नहीं, वो भी इस सीरम के लिए जो कि इतना अच्छा काम किया मेरे फेस पे। लाइक एक पैकेट के यूज में आपको इतना ज़्यादा अच्छा काम मिल जाता है, तो इसके लिए मैं इसको 300 परचेज करना मुझे कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लगा। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल रेट है और बजट में भी है और इतना क्वांटिटी भी आपको मिलती है। लाइक इट्स 75 ml, तो 75 ml आपको क्वांटिटी भी मिलती है, तो इसके लिए आई लव्ड इट। So talking about the makeup base, yes it is a makeup base, but you just can apply this serum and leave it for around 1 to 2 minutes, that's all. You don't have to wait for like 30 minutes 20 minutes, just for 1 to 2 minutes, then you can go ahead and do your makeup. The thing I like is that it has SPF, so you can apply the makeup directly after this. I mean, I don't suggest using it, but I did it before, so and it was causing me no harm, that's why I loved it. What I was just doing is that I was applying this, leave it for 1 to 2 minutes, like let it be absorbed into your skin, that's all, and then continue ahead with your makeup, like with your foundation, with your product or any other makeup product that you use. That's all I was doing it. I don't suggest you using it because it worked for me, and I was like directly applying the makeup after the serum because it has SPF. I just wanted to test whether it works or not. It did work. The makeup stayed all day long and it didn't have to like do the makeup spray, and I didn't do it at the first also. So for that reason I love using it because it is a makeup base at the same time also. So after applying this, you're gonna apply the moisturizer, right? And after the moisturizer you are going to apply sunscreen. Can you do the makeup after that? Yes, you can do a makeup after that sunscreen as well, and that is because when you apply sunscreen and then apply your makeup, it's kind of you're creating a barrier from your makeup and your skin. So it's kind of a healthy thing, like you're creating a barrier between the makeup and your skin. So it's very helpful, it's also healthy, and it's good for acne prone. But even if you have some other skin issues, it's also really good for you. And you can use makeup with this as well, saying that what you can do after applying the sunscreen, you can mix this in a foundation, and that will give you so much dewy and glowy finish of your foundation that you cannot even imagine. Like I put some like this much serum in my foundation, mixed it with foundation and then applied it. The first thing is that it stayed all day long. Second, the glowy and finish that I got was kind of incredible, and I was so shocked from the result of this. So it has like 27 only, but it helped me a lot to keep my foundation there and not get that cakey feeling out of the foundation after so many hours also. So I loved it, and this is a makeup base. तो अगर मेकअप बेस की बात करूँ तो ये एक मेकअप बेस है और एक्चुअली में है, और इसको लगाने के बाद भी आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है इसके बाद यूज़ करना तो भी आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यूज़ की हुई हूँ 27 SPF इसमें, उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं की हुई, मैं टेस्ट की हुई हूँ। एप्लीकेशन के बाद ऐसा हुआ कि मेरा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, वो जैसे मैं लगाई थी वैसे ही था। आफ्टर सो मेनी आवर्स, कहने का मतलब है कुछ घंटे बाद भी मेरा मेकअप जैसा था वो वैसा ही रहा। और अगर आप ये पूछेंगे कि क्या मैं लगाऊँ, तो मैं आपको सजेस्ट
सजेस्ट नहीं करूँगी। वैसे तो मेरे लिए बहुत काम किया, आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि सीरम के बाद थोड़ा लगाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है, तो पहले सनस्क्रीन लगा ही लीजिए, उसके बाद लगाइएगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इसके साथ कैसे यूज़ कर रही थी, तो मैं इसके साथ ऐसे यूज़ करती, इसको एक बार मैं लगाने के बाद टेस्ट की फाउंडेशन लगा के, जो भी बहुत अच्छा काम किया, देन व्हाट आई डिड कि मैं सनस्क्रीन लगा ली, उसके बाद इसको फाउंडेशन में थोड़ा सा डाल के उसके बाद मैं मिक्स करके उसको लगाई, और मेरा मेकअप फिर भी ख़राब नहीं हुआ, ऑल डे लॉन्ग था। और स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ये लगा कि वो शाइनी लुक दे रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, मतलब बिना मेकअप स्प्रे का वो शाइनी लुक, और पूरे दिन इतने घंटों तक मेकअप कर रहना, वो भी समर के टाइम पे। आई थिंक सबसे अच्छी बात यही थी कि मेरा मेकअप इंटायर डे था, और इसी के वजह से था, क्योंकि मैं प्राइमर के बाद बस इसको फाउंडेशन में मिला के लगाई थी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। So talking about if it's migraine safe, it is actually safe because it doesn't have really hard smell. तो अगर मैं ये बात करूँ कि क्या ये माइग्रेन सेफ है, तो हाँ ये है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड स्मेल नहीं है। So I was about to tell you something at the last of this video, right? And that is that this product somewhat has ingredient called methylxanthine, and that ingredient is known as MI. Well, I'm gonna say you that this ingredient is kind of found in lot of other products, and actually the thing is that it is safe to use in skincare product, and I tested it as well whether it's safe or not, but sometimes people get allergy by this. So if you are the person who get allergy by this product or by this ingredient, like you can check it on your other product as well whether it had it or not. Somehow it is safe, but some people get allergy from this. That's why if you are the person who get allergy from this, do not use it, and before using it, just do a patch test to let yourself know whether it's good or not. Like that ingredient can be at anywhere in your home care product, or like anywhere from your other hair care product or your any skin care product. That ingredient is very common to be found in lot of other products, so check that ingredient if you have it or you have used it some on your skin, and if that is safe for you, that went safe for you, then you can use this product without any harm, and then you can only continue it. I don't want any of my audience to like get some reaction or irritation, that's why I used it on my skin and it was completely fine. I used the 4-pack of it as I told you. वीडियो के लास्ट में कुछ बताने वाली थी एक इंग्रेडिएंट के बारे में, तो वो इंग्रेडिएंट का नाम है मिथाइलजोथोनजोन, एंड उसका शॉर्ट फॉर्म है MI। तो MI जो इंग्रेडिएंट है वो एक्चुअली बहुत सारे अदर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे, जैसे आपके हेयर केयर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा, आपके होम केयर प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, बट थोड़े बहुत कहने की कोशिश करें इस इंग्रेडिएंट को हटाने की जो कि इसमें मिला हुआ है। तो अगर आपको उस इंग्रेडिएंट से कोई इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप इसको यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई इरिटेशन या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूज़ मत कीजिए। हाँ, इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट तो कीजिए, लेकिन अगर पैच टेस्ट के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आता है या आपको लगता है कि हाँ अब तो ठीक है, अब इसको यूज़ करना सही रहेगा, तो ऑब्वियसली सही तो रहेगा, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लीज़ आप अपने अदर प्रोडक्ट में एक बार देखिए कि क्या ये इंग्रेडिएंट उसमें है, और आप इतने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इरिटेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हुआ, इरिटेशन हुआ है आपको, या फिर उस इंग्रेडिएंट की वजह से आपको एलर्जी है उस इंग्रेडिएंट से, या फिर आपको इरिटेट होता है उस इंग्रेडिएंट से, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मत यूज़ कीजिए। अदर देन दैट मुझे इसकी कोई इरिटेशन या फिर एलर्जी नहीं थी। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरे से भी ज़्यादा सेंसिटिव मेरी मॉम की स्किन है, जिनकी स्किन पर भी इसने कोई काम नहीं किया, कोई हार्म नहीं किया, ठीक है, बस बेहतर ही काम करता गया, तो कोई हार्म नहीं किया इसने, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं इसको सजेस्ट भी इसके लिए कर रही थी क्योंकि इसमें सब बाकी सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, एक्सेप्ट उसके वो भी इंग्रेडिएंट अच्छा है, लेकिन अगर आप एलर्जी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आलमंड सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बट किसी किसी को आलमंड से एलर्जी होती है तो उसको तो हम नहीं बोल सकते खाने के लिए। वैसे ही इसमें सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, बट एक इंग्रेडिएंट मैं नहीं चाहती कि आप यूज़ करें किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी हो। तो मोस्ट कॉमन अगर इंग्रेडिएंट जिससे एलर्जी हो सकती थी वो एक वही थी जिसके बारे में आपको बता चुकी। तो आप सबसे पहले खुद पे चेक कीजिए कि क्या आपको उस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है। वैसे वो इंग्रेडिएंट आपके हर एक प्रोडक्ट में मिल जाएगा, हेयर केयर या फिर लोशन वगैरह सब कुछ में। तो आप एक बार चेक कीजिए कि आप जब उसको अप्लाई करते हैं तो आपको कोई इरिटेशन होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, और अगर होती है तो मैं सजेस्ट करूँगी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जो कुछ अच्छा नहीं है
वो यूज़ करना ही भी नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो सब लोगों को सूट करते हैं बट मुझे सूट नहीं करता। इट डज़ंट मीन कि मुझे उस चीज़ को यूज़ करना नहीं आता या उस चीज़ को बिकना बंद हो जाना चाहिए या फिर वो चीज़ अच्छा नहीं है। वो चीज़ अच्छा है, मेरे पे सूट नहीं किया, मेरी स्किन अलग थी, दैट्स ऑल। So that is all for today guys, and next time I'm going to see you with a new product and with a new topic. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।